Optimizing efficiency and reducing waste. Optimizing का मतलब होता है in a very profit way, in a very positive way. You need to use the efficiency. You need to allocate the resources, and you need to reducing the waste. ठीक है. Work study techniques such as method study and work measurement help identify and eliminate unnecessary step movement and delay in production process. सब कॉमा कॉमा देके लिखा है, मतलब these are all points. आपको टेक्निक समझना है, क्या मेथड, क्या मेजरमेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई, कहाँ अननेसेसरी स्टेप्स लिया जा रहा है और कहाँ नेसेसरी स्टेप्स लेना है, ताकि हमारा एफिशिएंसी बढ़े, काम का, प्रोडक्शंस का, और जितना भी वेस्ट है वो रिड्यूस हो. द नेक्स्ट वन इज टू लीड. The next one is to lead the streamlined workflow, reducing waste time and resources, and ultimately increasing output with same or fewer resources. And apart from that, there is another important point we need to discuss, that for how much we are need to be efficient to use the resources, to allocate the resources, distribute the resources, and apart from that, what are the which are the resources you need to find it out, that and that will going to increase the output, and the same or fewer resources that will going to increase the output, and the resources will going to develop. So these are the optimizing efficiency and reducing the waste. Next, improving productivity and output by optimizing work method and determining standards time for tasks. A work study help establish efficient production stuff. Acha, you need to develop the work method. Okay, determining the standard time for tasks. Okay, so that for that you need to develop a work study. Okay, and for then only you can find it out. The production standard will be going to high, and it will be give the efficient result. Okay, ultimately the business, and these are the things which you need to which the every businessman or every production house need to achieve, or need to follow, so that they can minimize the effort and improve the productivity. Next point. Now, another important point, through work study, this will going to distribute, this will going to make you help or make you learn how to allocating the resources, allocation of resources, including the manpower, machinery, and materials, including the manpower, then the machineries and the materials. Now, this also ensure that resources are used effectively and efficiently, minimizing waste and reducing cost. Okay. And another important part is that this will going to establish effectively, efficiently, minimizing the waste and reducing the cost. It will going to minimize the waste, and ultimately it will going to reduce the cost. If these things are need to be followed very means very keenly, if the every businessman or every any business organization follow these patterns, this study, then they will going to reduce the minimizing the waste, and they will going to reduce the unnecessary cost that been taken for granted. Okay. Next point, cost reduction and improve profitability. By reducing the waste, improve efficiency, and optimizing resource utilization, work study help lower production cost. I don't find any point to be need to be make you understand elaborately, because each and every point is very much clear. Same means maximum points are been repeated here. That reducing waste, if the waste has been reduced, then the efficiency will improve, and if the efficiency will improve, then what will happen? There will be the low production cost, and you will find or going to find out the profit. Now, lower production costs contribute to higher profitability and stronger competitive advantage. If the production cost will be lower, then it will going to create the profitability. You will can see the profit, and there will be you will be or the production any production management or any businessman
can see themselves in the competition edge. Next point, enhanced work efficiency and morale. Work study can create more efficient and satisfying work environment, reducing worker fatigue and increase job satisfaction. Now, work study, what will be the work study? There is another uh, part that only for the laborers and employees, that it will going to reduce the fatigueness of the employees. And for the fatigueness sake, may sometime what you will see, that the employees are not pull out the works on time, not give they are failed to give deliver their 100%. Okay, so what will happen, this will going to lead decrease in job satisfaction. So during the work study, you will the businessman can find it out where the unnecessary steps are being taken, what are the where are the loopholes, so that we can rectify, or we can rectify those loophole, and we can strengthen the job uh, strengthen the satisfaction area of the employees. And this also can lead to improve work efficiency and motivate an overall performance. Next slide. Now, what are the objectivities? What are the objectives of work study? Now, improve in working method, then standardization of procedures, effective utilization of resources. Whatever I have explained in my previous slide, the same points are been given here. Okay, the same improve work method, or work study will going to improve the working method, insufficient practices, streamlined actions, effective process, standardization and procedure means the predictability in work and performance will improve. Then utilization of maximum resources, human materials, output, and it will going to minimize the waste. Next. Now, what are the objectives of work study? Increase productivity. This is the main objectivity of the work study, that will going to increase the productivity, reduce the cost, improve working conditions. Okay, these are the objectivities of the work study. Next. Now, procedure of work study. First of all, there is a selection method, then the recording method, then the examination method, then the development method, measurement, installation, definition, installation, and maintenance. These are the 2, 4, 6, 8. These are the main 8 procedures of work study. Selections means just to identify the job, process, and operations to be studied. Next is recording, documents, relevant facts, observations about the method. Examinations means analyzing the record informations and identify those areas where the businessman or any organization feels that they need to improve, they needs improvement. Then development, develop new or improved method for performing job. Then the next one is measurement. Measure the work content and establish standards times for the new work. These are the measures means you need to take the necessary steps where you need to improve, where are the areas you need to install, what are fix the procedure. These are comes under the methods. Then the definition part. If any new methods are been, if any new technicalities, if any new necessary details are to be included, that are comes under this particular point called definition. Then installation means the same standard practice, new methods, new installations of the machineries, equipments, motivations of the employees. This calls comes under installation. And the last but not the least is maintenance. Monitor the new method and ensure it is maintained over time. Next slide. Now, method study. What is the method study? Work study पढ़ रहे थे, अब next है method study. Method study focuses on analyzing and improving work method. It involves recording existing method, examining them critically, developing improved methods, and implementing them. So, method study it simply focuses on analyzing and improving the work method. किस तरह से वर्क मेथड को इम्प्रूव किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है, एग्जिस्टिंग मेथड को एग्जामिन किया जाता है ताकि और बेहतर से बेहतर बन सके. नेक्स्ट. सर क्या हुआ? सर हम अभी ज्वाइन किए, तो पहला वाला स्लाइड थोड़ा सा शॉर्टकट से समझा दीजिए ना. अभी अगर पीछे रिपीट करेंगे ना, बहुत सारा स्लाइड है, बहुत आगे निकल गया है. तुम एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेना, अगर फिर भी डाउट रहा तो मैं क्लियर कर दूंगा. वेरी इजी, वेरी सिंपल. ठीक है.
पहले एक बार ठीक है। पढ़ लो, ओके। एक बार तुम सुन लो, अगर फिर भी तुम्हें लगता हम्म। है कि कोई डाउट रहता है तो फिर पहले सुन लो ना। Now, the ओके method ओके। study. Hmm. The method study. The primary objectives of the method study are to identify and eliminate unnecessary operations and movements, optimize resource usage, and ultimately improve efficiency and productivity while reducing cost. This is achieved by systematically recording, analyzing, develop better for effective elaborating works. This is the primary objective of the method study. देखो कॉमा कॉमा करके दिया है, मतलब एक एक अननेसेसरी ऑपरेशंस, जो कि अननेसेसरी चीजें जो कि एक एग्जिस्टिंग कंपनीज में रहता है, जो कि जो चीज का उतना सदुपयोग नहीं होता है, उस चीज को पहले एलिमिनेट करना, हटाना। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज है जो कि अननेसेसरीली काम का बोझ बढ़ाता है, उतना एफिशिएंट नहीं है कि वो आगे और काम कर पाए, तो जिसकी वजह से फिर उनको भी एलिमिनेट किया जाता है फॉर द कंपनी पर्पस एंड फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज यूसेज, उसलिए इसलिए हटाया जाता है। उसके बाद इम्पोर्ट रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी, उसके बाद रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ठीक है, ये सारा कुछ जो होता है ये सब मेथड स्टडीज के ऊपर पे आता है। नाउ इम्प्रूविंग वर्क मेथड एंड प्रोसीड्योर, what are the different ways of improving the work method and procedure? This method study, its aim is to find the best way to perform a task, leading to more efficient and streamlined workflow. ये सबसे बेहतर परफॉर्मेंस या बेहतर टास्क दिया जाता है ताकि बहुत एफिशिएंट वे में वो काम कर पाए। That optimizing resource utilization by analyzing the current method, the study help identify areas where materials, equipment, manpower can be used more effectively, reducing waste and improving productivity। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेस by analyzing the current method, the study help identify areas where material, equipment, manpower can be used more effectively, reducing waste and improving productivity। जहां पर प्रोडक्टिविटी का इंप्रूवमेंट होगा, रिड्यूसिंग वेस्ट और मैन पावर और इक्विपमेंट्स को और बेहतर बना दिया जाएगा। तो एक पॉइंट्स यहाँ पर एक चीज देखिए, वर्क मेथड और मेथड्स ऑफ स्टडी दोनों में एक पॉइंट बहुत सिमिलर है। क्या वो सिमिलर है? कि एफिशिएंसी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्ट और इक्विपमेंट्स, ये जो चार पांच पॉइंट्स है देखिएगा हर एक जगह सिमिलर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर वर्क स्टडी और मेथड स्टडी हम लोग करें तो मेथोडोलिकली ये देखा गया है कि दोनों बिल्कुल सेम ही है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है जो इससे वो डिफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ना उसके बाद रिड्यूसिंग फटीग एंड इंप्रूविंग वर्क कंडीशंस। देखिए फटीग का मतलब टायर्डनेस। मेथड स्टडी अगर मेथोडिकली, ये एक्चुअली क्या है बोलिए तो, बोलो तो ये एक्चुअली सबके लिए बराबर है। आप अगर कुछ भी काम टेक्निकली मेथोडोलॉजिकली फॉलो अप करते हो तो आपका वो टायर्डनेस हटा दिया जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, आप एक मतलब एफिशिएंट वे में काम कर सकते हो। जैसे बोला था, नाउ इट इज द कंपनीज डोंट रिक्वायर एनी what you can say hard workers, they don't require any hard worker, but they require a skilled worker. They know the technologies, who knows the method how to complete the work in a very stipulated time, amount of time that has been given। पहले था ऐसा, जब मशीनरीज उतना डेवलप नहीं हुआ था तब इंसानों को बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता था कुछ भी मशीनरीज को से काम निकलवाने के लिए। लेकिन बट द सिचुएशन एंड सिनेरियो इज कंप्लीटली चेंज नाउ। एवरी what you can say, every companies or every business organizations, they want their employees to be skilled, fast, technically improved, okay, and they need to complete the task methodologically, okay, methodically। तो अगर ये सब कुछ क्राइटेरियाज कोई एम्प्लॉयज फुलफिल करता है तो वो डेफिनेटली कंपनीज के लिए अच्छा है और कंपनी गोल के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ओके, देन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन क्वालिटी। अगर आप अपने मेथोडोलॉजिकली काम करोगे, टेक्निकलिटीज को इम्प्रूव करना, टेक्निकलिटीज वे में आप इम्प्रूव करोगे तो व्हाट विल यू गोइंग टू सी, यू कैन सी द आपका जो प्रोडक्शन है, कंपनीज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, वो उसका क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। कॉस्ट रिडक्शंस, जो सिस्टमेटिक वे में काम करना है,
उसके बाद क्या है, एफिशिएंसी, देन इम्प्रूविंग द स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। जो है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस का मतलब है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, टूल, okay, giving skills set to the employees, then this is the streamlined process, and if this will going to improve, then automatically the cost will be reduced. The cost definitely will reduce. अगर आपका मतलब कोई भी कंपनीज में आप काम कर रहे हो, वहां अगर वेस्टेज जितना कम होता है, वेस्टेज जितना कम होता है, उतना ही देखिएगा आगे बढ़ता है। उसके बाद होता है सेफ्टी इंप्रूवमेंट। सेफ्टी इंप्रूवमेंट आप मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ रिड्यूसिंग वेस्ट का। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, अगर आप कभी गए होंगे, बिल्डिंग, आशुतोष बिल्डिंग, ऐसा बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, वहां पर रेनोवेशन किया जाता है बिल्डिंग को। ठीक है, रेनोवेशन किया जाता है बिल्डिंग्स को, कलर किया जाता है बिल्डिंग्स को, बेंचेस डेस्क को पॉलिश किया जाता है। बट यू डोंट बिलीव दैट कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़ा कैंपस, ह्यूज कैंपस है, तो एवरी डे हर एक डिपार्टमेंट का क्लासेस नहीं होता है। तो वहां क्या किया जाता है, एवरी क्लासेस, जहां जहां कोई एक स्पेसिफिक क्लास सेट किया जाता है, उस स्पेसिफिक क्लास का फैन लाइट्स चलाया जाता है। बाकी क्लासेस जितना है जो उतना यूटिलाइज नहीं होता है, कभी कभार होता है, उसको ताला बंद कर दिया जाता है। ताला, स्पेशली द डोर्स आर लॉक। in I have only seen in this in Calcutta University. Apart from Calcutta University, I couldn't find this thing been used or this thing been implement anywhere else. वहां का मैनेजमेंट इतना स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग द कॉस्ट, और जितना हद हो सके वो अपना कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गप्पे ना मारे, अननेसेसरी वेस्ट टाइम ना करे, इसलिए जितने भी रूम्स है कलकत्ता में, जितना कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जितने अदर्स रूम है, उनको सब ताला लगा दिया जाता है, सब ताला। एक दो क्लासेस ओपन रहते हैं जहां पर रेगुलर क्लास होते हैं, दैट इज बिन ओपन, अदरवाइज इतना ह्यूज यूनिवर्सिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थाउजेंड्स, 10,000, 15,000 मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना पड़ता था मैनेजमेंट्स को। तो जब मैनेजमेंट चेंज हुआ तो इस चीज को बहुत मतलब ज्यादा तरीके से इस चीज में इंप्लीमेंट किया, और अब हालत ये हो गया कि इतना कॉस्ट रिड्यूस हो गया, इतना एफिशिएंसी हो गया कि नाउ द यूनिवर्सिटी इज अर्निंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, सेविंग लॉट ऑफ टैक्सेस एंड अर्निंग लॉट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू दिस कॉस्ट रिडक्शन मेथड्स। ओके, जहां जहां जिसकी जरूरत ही नहीं है उस चीज को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पार्किंग्स, पहले क्या था, पार्किंग एरियाज में कोई भी बाहर का आदमी आके गाड़ी पार्क करके चला जाता था दिन भर के नाम पे, पूछने वाला कोई नहीं था, nobody will going to ask, and it's very difficult to find it out whose bike and car are there. Everybody will think the students park the car or park the bikes here. अभी क्या क्या है, वहां पर थर्ड पार्टी पेरोल, कोई कंपनी का सिक्योरिटी एक लगा दिया गया है कि स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी बाहर का पार्क नहीं करेगा। और स्टूडेंट्स जो है वो क्लास, यूनिवर्सिटी का नियम क्या होता है कि आना है, क्लासेस नहीं रहने से भी अड्डा मारने के लिए आ जाते हैं, वे टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं वहां के मैनेजमेंट ने, फ्रॉम एवरी स्टूडेंट्स फॉर पार्किंग दे चार्ज सम अमाउंट। तो दिस इज द वे, वो किसी कोई एक कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से अपना वेस्टेज को रिड्यूस करता है, अननेसेसरी जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करता है और अपना प्रॉफिट बढ़ाता है। सेफ्टी इंप्रूवमेंट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। मेथड स्टडी कैन हेल्प, also help identify and address potential safety hazards leading to safer working environment. कोई भी जहां पर हम लोग, जहां पर कोई भी एम्प्लॉइज काम करते हो, देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेफ्टी हजार्ड्स, वेयर सेफ्टी जैकेट्स आर देयर और नॉट, सेफ्टी शूज आर देयर और नॉट।
if the accidental prone areas are higher, the risk is higher, then there is sensitive, then skillful employees are being given over there. Okay, and they are being minutely observed 24 into 7, and the equipments are been every day the equipments are being checked. मैंने इसका शायद एग्जांपल इसका पिछले वाला स्लाइड का पिछले स्लाइड में दिया था, बंडा मुंडा जो कि मैंने एग्जांपल दिया था, जहां पर आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, और अपार्ट फ्रॉम दैट वहां डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रिपेयर होता है। जैसे हम लोग गाड़ी सर्विसिंग करवाते हैं, वो बंडामुडा में वो सर्विसिंग सेंटर है, रिपेयरिंग सर्विसिंग होता है। और जो बॉडी फ्रेम या इंजन बनता है वो तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, जहाँ चित्तरंजन है लोकोमोटिव वर्क जहाँ होता है वहां इम्प्लीमेंट्स होता है। तो हजार तो वहां अगर आप कभी गए होंगे, कभी देखे होंगे, विश्वकर्मा पूजा के एक दिन के लिए वो पूरा ओपन टू ऑल सबके लिए खुला रहता है। अदरवाइज यू नीड टू हैव एक्सेस अथॉरिटी, then only you are permissible to enter into that area. Okay, so if you visit there, then lot of safety gadgets, lot of safety equipments are there, and 24 into 7 there is an ambulance services there inside the what you can say, inside the industry. Okay, diesel industry and electrical locomotives and areas, standby mode. The ambulances are there on a standby mode, and few reservations are there in the hospitals. That is two in the railway hospitals. Few beds, few what you can say, few things are there which are been reserved for the what you can say, for the employees and staff. Only for the employees, those who are working in those hazardous, accidental prone areas. For them only, not for everyone. For few employees who are working with their life risk, hazardous or accidental prone areas, they are only allowed to utilize or get these facilities. Not everyone. उनको स्पेशल कार्ड्स, उनको स्पेशल फैसिलिटीज उनको मिलता है। क्यों? वो इतना खतरनाक जगह पे काम करते हैं, इतना खतरनाक। कभी अगर ट्रेन का वायर टूट जाता है, वो इंजन का डब्बा उनके शरीर के ऊपर आके गिरता है, तो उसके लिए सेफ्टी, उसके लिए कुछ देखा गया था ना, एक एक्सीडेंट हो गया था एक साउथ इंडियन को, एक जब ट्रेन के इंजन के साथ ये बोगीज जुड़ रहा था, तो वो कपलिंग किसी तरह से नॉक नहीं हुआ और वहीं पर उसका डेथ हो गया। तो कितना डेंजरस सिचुएशन पे काम किया जाता है, कैन यू एवर इमेजिन? तो दैट इज वाई सेफ्टी इम्प्रूवमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी in this criteria, and every company's responsibility to look after this criteria. Next slide. Now what is motion study? ये तो हो गया method study, work study, एक और है motion study. Motion study also known as time and motion study. It is a method of analyzing and improving the efficiency of work processes by examining the improved movements of the workers and machines. It involves identifying and eliminating unnecessary movement to optimize productivity and reduce the fatigue. Key aspect पहला है motion study क्या है? It is also known as time and motion. It is the way how the efficient way the workers can utilize their time and motion. Motions मतलब क्या? Work, flow of work, motion and flow of work, and complete the task. This is called motion study. जैसे for example, assembling of any machineries, assembling of CPU, central processing unit of a computer. जो मतलब क्या आपको बोलूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद असेंबलिंग ऑफ सीपीयू वो एक चैलेंजिंग टास्क बन गया था। तो अब क्या हुआ कि जो सीपीयू मदरबोर्ड या फिर जो प्रोसेसर्स बनाते हैं, उन्होंने सबसे पहला इस चीज को ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट्स किया कि विद इन हाउ मच टाइम मैं पूरा कंप्यूटर सेटअप को असेंबल कर सकता हूं। ओके, अगर इतना टाइम ज्यादा ले रहा है तो इट इज वेस्ट, इट इज कंप्लीटली वेस्ट। तो स्पेशल ट्रेनर्स आर देयर, देखिएगा स्पेशल ट्रेनर्स आर देयर
skilled workers are there, they are been given special trainings and skilled worker, and with efficient equipments उनको दिया जाता है, ताकि विद इन अ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यू नीड टू कंप्लीट द प्रोसेस। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं इसका दे सकता हूं इस तरह से, देखिएगा आपके लिए इजी होगा। जो मोटो जीपी रेसेस होता था, गाड़ी के रेसेस आप लोग देखे होंगे, ईएसपीएन, स्टार स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स चैनल में, अगर आप लोग स्पोर्ट्स लवर्स हो तो आप लोग ये सब देखे होंगे। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट एंड क्रिकेट, तो मोटो जीपीज, जो कार रेसिंग्स होता था, तो जब वो टायर्स चेंज आता था, टायर चेंज होता था, तो आप मतलब यू विल सरप्राइज दैट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, वो टायर चेंज कर देते थे। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो चारों टायर चेंज कर देता, और कितना गैजेटेड मशीनरीज, इक्विपमेंट उनके पास स्टैंड बाय मोड पे रहता था कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो सब कुछ चेंज कर देते थे। यहाँ टायर चेंज करना है, ठीक है, तो विद इन अ टाइम वो टायर चेंज कर देते थे और फिर रेस में चल जाते थे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मोशन स्टडी, कि कितना और कितने वक्त में इस काम को कंप्लीट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी, और एग्जामिन किया जाता है। नाउ व्हाट आर द की एस्पेक्ट ऑफ मोशन स्टडी? नंबर वन, observation and analysis. This is an important part. Motion study involve closely observing the movement of the workers. Workers का movement को देखा जाता है, एंड मशीन इन्वॉल्व इन टास्क, जैसे मैंने बताया, और जो मशीनरीज में उनको काम दिया जाता है, वो टास्क कैसे वो कंप्लीट कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है। दिस कैन बी डन थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग्स और बाय डायरेक्ट ऑब्जर्विंग द प्रोसेस। इसको कैसे किया जाता है? थ्रू सीसीटीवी कैमरास, आप देख सकते हो, और रिकॉर्डिंग प्रोसेस में यू नीड टू एनालाइज। नेक्स्ट, एलिमिनेटेड वेस्टफुल मोशंस, जैसे आइडेंटिफाई द अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी मूवमेंट सच एज रीचिंग फ्रॉम टूल्स और आइटम्स दैट आर टू फार अवे। यही एक एग्जांपल है। ठीक है, आप सर्विसिंग करवाने के लिए जब गाड़ी जाते हो सर्विस सेंटर में, ये देखिएगा उनका जो इक्विपमेंट्स और टूल जो भी है, वो उनके एकदम काम करने की जगह पर रखा हुआ है, मतलब तुरंत विद इन अ टाइम वो सब कुछ चेंज करके आपको कुछ घंटों में आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे। मतलब किसी और हेल्पर्स की जरूरत नहीं है, दे आर सेल्फ एफिशिएंट, और इतना इम्प्रोवाइज्ड हाईली टूल्स वो लोग यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, दैट देयर इज नो सेकंड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू हेल्प वन एम्प्लॉइज। इतना एफिशिएंट टूल्स है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन। मोशन स्टडी aims to standardize work processes and simplify complex movement to improve efficiency and reduce the error. फायदा क्या होता है? जितनी भी एरर्स, इसको रिड्यूस किया जाता है, काम का एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, वर्क प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, एंड सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। जो कि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द फैक्ट्रीज एरियाज, मूवमेंट जो होता है एम्प्लॉयज का, वो फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो, या फिर स्पेसियस होना चाहिए, है ना। एक देखिएगा, आप बड़े बड़े कंपनीज में जाइएगा तो इतना बड़ा शेड क्यों दिया जाता है? छोटा सा शेड तो इससे छोटा सा हो सकता है, नहीं, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी फ्रीली, उससे भी वेस्ट ऑफ टाइम होता है। दैट इज वाई कंपनीज जहां पर बनते हैं, इंडस्ट्रीज जहां पर बनते हैं, दे आर ऑफ सो बिग एंड ह्यूज। देन मेजरिंग टाइम, another important is measuring time. Along with the motion analysis, time study measure the time taken for each movement or tasks to establish work standard. कोई एम्प्लॉइज कितना घंटा काम कर रहा है, कितना आवर्स में एक इक्विपमेंट्स या कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, दैट आर नीड टू बी ऑब्जर्व वेरी क्लियरली एंड माइन्यूटली। नाउ क्या है, दैट इज ergonomics. Ergonomics motion study also considered uh, ergonomics principles to minimize physical strain and reduce the risk of injury. This is a part of calculative
study, ergonomics, ERGONOMICS, ergonomics. Okay, um, this is a part of a study, and some principles are there. Now, these principles are to be followed. Why? Because this will going to minimize the and reduce the risk of injuries. Okay, जैसे अभिजीत, I think this particular example will going to relate to you, as because you have told us that you are in the uh, means army and BSF, whatever you are serving before coming to this industry. So, during the training sessions of firing the ammunitions, firing the gun, or firing the bullets, or you can say firing the ammunitions, your commanders or your commanding officers give you the special trainings how to hold the arm, what is the best technical way to utilize the arm, where to hold the grip, how to fire, so that you can utilize your time with maximum when you are encountering or when you have an encounter with some militants. ओके, सम टेक्निक्स देयर। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एम्यूनेशन पकड़ लेते हो और सिर्फ दाग देते हो तो वो फिर आप एलिमिनेट हो जाओगे, है ना। सपोज कोई पहाड़ के पीछे या पेड़ के पीछे कोई एक मिलिटेंट छुपा हुआ है, कोई घर में छुपा है, आप कैसे उसे काउंटर करोगे, किस आपका मशीनरीज का पोजीशन कैसे होगा, ग्रिप कहां पर होना चाहिए, ठीक है, आपका आईसाइट कहां पर होना चाहिए, आपका बॉडी पोजीशंस क्या होना चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होता है, स्ट्रेटेजीज होता है, फॉर्मूलाज होता है, जो आपके कमांडिंग ऑफिसर आपको ये सब चीजें, ये सब बारीकियां सिखाते हैं, क्योंकि जब आपको मिलिटेंट के साथ एनकाउंटर करना होता है तब ये सब चीजें काम में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट एंड स्विफ्ट है, क्योंकि वो भी तो ट्रेनिंग करके आते हैं, दे आर ऑल्सो बीन ट्रेन फ्रॉम देयर कमांडिंग ऑफिसर्स। ओके, तो आप अगर लोडिंग करने में या फिर फायर ओपन करने में टाइम लगा दोगे तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो आपको एलिमिनेट करके चला जाएगा, है ना। तो फायर ओपन कैसे करना है, गन कैसे होल्ड करना है, ग्रिप कैसे पकड़ना है, ये सारा प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज। इसी चीज को मेथोडोलॉजिकल स्टडीज में या मोशन स्टडीज में एरोग्नोस्टिक्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर डाउट है तो अभी पूछो। If you have anyone, Tanuja and Abhijit, those who are listening to me, if you are having any doubt on this new word or new means new content that has been written here, if you have any doubt on this particular word, what is ergonomics, then please let me know. कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है, गुड टू हियर दैट। नेक्स्ट, हाउ मोशन स्टडी इंप्रूव एफिशिएंसी। इंप्रूव एफिशिएंसी कैसे बनाते हैं, जैसे फिर भी वही सेम चीज यहाँ पर रिपीट हो गया, अननेसेसरी मींस अनयूजफुल movement motion study can reduce the time to take to complete a task, leading to increased productivity. Next, simplifying complex movement make the work easier and less tiring, reducing worker fatigues, ठीक है। Third, standardize the process, ensure that all workers perform tasks in a consistent and efficient manner. Next, by understanding how work is done, motion study can help identify areas for improvement, such as better tool placement or equipment design. Whatever I have is explained in work study, method study, the same principles and same things are quite there in motion study also. Every point is similar. Next, now tools and technique. स्टॉप वॉचेस, कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं टू ऑब्जर्व द मोशन स्टडी। नंबर वन, स्टॉप वॉचेस, वीडियो रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर्स, थर्बलिंग्स। व्हाट इज दिस थर्बलिंग्स? दिस इज अ सिस्टमेटिक मोशन यूज्ड टू एनालाइज क्लासिफाई मूवमेंट्स। थर्बलिंग्स एक सिस्टम है, ओके, एक सिस्टम है जिसके माध्यम से आप मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, मूवमेंट ऑफ मशीनरीज
production of machineries or productions and manufacturing of product and goods can be observed. That is called tremblings. Next slide. Now, what are the examples of motion study and applications? Number one is manufacturing. Number two is healthcare. Number three is office work. Manufacturing means assembling the goods, producing the goods, reducing the time, and producing and manufacturing the goods on time. What is the healthcare? Improve the procedures, patient wait times, reducing the surgical procedure. ऑफिस वर्क मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड बढ़ जाता है, जिससे पेपर वर्क जो है वो कम हो जाता है और एरर्स होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन स्टडी एंड इट्स एप्लीकेशन. नेक्स्ट. Now, work measurement and productivity measurement involve quantifying and evaluating how effective resources are used to produce output. Now, to improve productivity, organizations can establish clear goal, track time spent on tasks, assess the quality of work, while also focusing on employee engagement, collaborations, and the utilizations of tool and technique. These are the work measurement and productivity. कौन सा होगा? पहला होगा quantifying and evaluating how effectively resources are used. Just to, it means you need to analyze, you need to quantify means you can analyze and you can evaluate the effective use of resources and output. Next, to improve productivity, organizations can establish clear goals, track time spent on tasks, and assess the quality of work. The next, you can have the important criteria for work measurement is to set the clear goal, establish the track means establish a particular work line, and through which you can check the time spent on the tasks, the time spent on manufacturing the product, and you can also easily the access the quality of the production. आप प्रोडक्शंस की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड वर्क मेजरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट स्लाइड. मेजरिंग प्रोडक्टिविटी. डिफाइन गोल एंड KPIs. Establishing measurable target and key performance indicators to track progress and measure success. This is the measuring productivity. Time tracking. Monitor the time spent on various tasks to establish and identify the insufficiencies and areas of improvement. जहां जहां लग रहा है कि यहाँ पर insufficient है, यहाँ थोड़ा सा और काम की जरूरत है, डेडिकेशंस की जरूरत है ताकि हम गोल तक पहुंचे, तो वो ट्रैकिंग्स करते हैं. नेक्स्ट है टास्क कंप्लीशंस एंड द क्वालिटी. इवेल्युएट द नंबर ऑफ टास्क्स एंड कंप्लीटेड द क्वालिटी ऑफ द वर्क एक्सेस ओवर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, टास्क कंप्लीशंस को जल्दी करवाता है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस को एनहांस करवाता है. एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन. फाइनली एम्प्लॉयज, जब कोई स्किलफुल एम्प्लॉयज मेथोडोलॉजिकली काम कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो एफिशिएंसी है काम करने का बढ़ जाएगा. एंड फॉर दिस दे विल बी सेटिस्फाइड, their engagement will be converted into higher engagement and often correlate with the increased productivity. So these are the measuring productivity. Next, collaborations and teamwork. This next is collaborations and teamwork. You need to suppose some work are there where you require a teamwork, you need a collaborations with other departments. Okay, then you will find the work is very much easier and that can be completed on the given time or proposed time. So the next one is automated tool and technique. Some tools and technique to streamline workflow, automate tasks, and improve the work efficiency. These are the measuring productivity. Next is labor productivity. What is this? Measure output per worker or per hour work can be simple way to track the productivity. कोई देर से आ रहा है लेकिन थंब इंप्रेशन दे रहा है और उसका अटेंडेंस पूरा बन जा रहा है, तो ठीक है, लेट आउटकम्स, लेट गोइंग्स, ये सब में आप रोक कर सकते हो ये मोशन स्टडी से.
Then partial factor productivity, calculate output per single input such as output per unit of capital और labor. जैसे कौन एक एम्प्लॉय कितना प्रोडक्शन दे रहा है, उसका एफिशिएंसी कितना है, आगे कुछ बड़ा है कि नहीं बड़ा है, उसका लोड ऑफ वर्क कितना है, लोड चार्ट कितना है, मैन्युफैक्चर टाइम में हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल वो असेंबल कर पा रहा है कि नहीं, ये सब पार्शियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी में गिना जाता है. Next, multi-factor productivities, that is, evaluate output relevant to subset of input considering the combined impact of various resources. उसके बाद है multi-factor productivity, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसेट इनपुट कंसिडरिंग कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. जो मैन्युफैक्चर्ड गुड का आउटपुट होता है उसका सबसेट इनपुट कितना है. फॉर एग्जाम्पल आज अगर 1 टन माल तैयार करना है तो उसका सबसेट जो आउट इनपुट है वो माल तैयार है कि नहीं है. ठीक है. और उसके बाद उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है कंबाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज. अपार्ट फ्रॉम दैट, वेयर द रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज्ड for purchasing the raw materials or purchasing from the salesman, this also can be calculated, which is comes under multifactorial productivity. Next, what are the improving productivity? अगर प्रोडक्टिविटी का इंप्रूवमेंट हो जाता है तो क्या क्या फायदा होगा. सेट द गोल्स, आपका गोल सेट हो जाएगा. प्रोवाइड टूल्स एंड रिसोर्सेस, इंप्लीमेंटिंग ऑफ टूल्स, प्रॉपर रिसोर्सेस जब आपके पास रहेगा तो नए नए मशीनरीज, नए टूल्स वो आपको इंप्रूव करेगा. इंप्लीमेंट फीडबैक सिस्टम, इस्टेब्लिश रेगुलर फीडबैक लूप ऑफ ट्रैक टू ट्रैक प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट एंड प्रोवाइड रिकॉग्निशन फॉर हायर परफॉर्मेंस. जैसे ही आप फीडबैक सिस्टम कस्टमर से आप लोगे तो आप कहाँ कहाँ लूप होल्स है, कहाँ का एरियाज जहां आप इंप्रूव करना चाहते हो, इंप्रूव होना है, आप वो सब इंप्रूव करिएगा. जैसा ही वो इंप्रूव करेंगे तो कोई भी कंपनी कंपटीशन एज के सबसे नजदीक होगा. नेक्स्ट है एनकरेज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अपने एम्प्लॉयज को अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन, सैलरीज ऑन टाइम, ये सारा कुछ देना चाहिए ताकि वो और डेडिकेटेड और मोटिवेटेड वे में काम और आगे करे. ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो, streamline process, eliminate bottleneck and reduce unnecessary steps in the workflow. ठीक है. ऑप्टिमाइज वर्कफ्लो मींस द प्रोसेस शुड बी स्मूथ, एलिमिनेट द बोटलनेक. मतलब सोचो कि जो काम में ऑब्स्टैकल्स, बोटलनेक का मतलब होता है ऑब्स्टैकल्स, जहां जहां ऑब्स्टैकल्स हो रहा है उस चीज को रिमूव करना, स्ट्रीमलाइन को स्मूथ एंड फ्लो करना, ये क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिविटी है. नेक्स्ट स्लाइड. Improve time management. Train employees on effective time management techniques and encourage time blockings to focus on tasks, reduce distractions, which create a work environment and minimize the distractions. Focus on prioritizations means employee identify the priorities which they feel that these are the productions that I need to complete earlier. तो वो priority basis में काम करते हैं जिससे क्या होता है काम का जो मतलब स्पीड है वो दुगना हो जाता है. नेक्स्ट है प्रोमोट कोलैबोरेशंस, अपना टीम वर्क, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैब होके कोलैबोरेशंस करके काम को आगे बढ़ाना. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्रोमोट कोलैबोरेशंस. प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. उसके बाद यू नीड टू मेक योर एम्प्लॉय स्किल मोर स्किलफुल, मोर give more training and opportunities so that they can lead to increased productivity. Next slide. So here we comes to the end of this particular chapter. So now, मैम थोड़ा सा पहला जो स्लाइड था उसमें चले जाइए. अभिजीत का डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ. अभिजीत लाइन पे हो कि निकल गए हो? यस सर. है ना. ये वाला था पहला स्लाइड 25 नंबर. क्या लिखा है मैं बढ़ देता हूँ. ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग वेस्ट. ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है पॉजिटिव वे में काम करना, पॉजिटिव वे में अपना एफिशिएंट वर्क स्ट्रक्चर को लगाना ताकि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले. जो वर्क स्टडी टेक्निक है, इमोशन स्टडी, मेथड स्टडी, एक वर्क स्टडी, ये 3 स्टडी है. उसमें से वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी एक टेक्निक है जो कि हमारे काम करने की तरीका को मेजर करते हैं.
और आइडेंटिफाई करने में ये सहूलियत पहुंचाते हैं कि हम कहां कहां अननेसेसरी स्टेप्स हम ले रहे हैं, जिसकी जरूरत हमें नहीं है उस स्टेप को हम ले रहे हैं। इसे कहते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब आप नोट्स तैयार किस बेसिस पे कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो कि ये पूरा जितना है आप उसको कॉपी में लिख रहे हो। ये क्या है? टाइम टेकिंग होगा, आप टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। पढ़ने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये जो मेथड्स है, इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड अननेसेसरी प्रोसेस। आपको क्या करना है कि ये जो स्लाइड आपको मिला है, ये स्लाइड्स आपको बढ़िया से सुनना है और अपने से तैयार करना है। ओके, अपने से नोट्स तैयार करना है फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। दिस इज कॉल्ड द वर्क स्टडी टेक्निक। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे भी एक और इससे एक और चीज का पता चलता है कि बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर प्रोडक्शन हाउस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में क्या दिक्कतें हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, ये प्रोसेस पता चल जाता है थ्रू वर्क स्टडी। कि एम्प्लॉयज सस्टेनेबल एनवायरमेंट में काम नहीं कर पा रहा है, एम्प्लॉयज क्या एफिशिएंट है, वर्कर्स लोड नहीं पे ले पा रहा है, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स जहां से आ रहा है वो क्या सप्लाई ठीक से नहीं कर रहा है। दिस वर्क स्टडी विल गोइंग टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट loopholes through which, by which, if you improve, if anyone tries to improve this loophole or come out of this loophole, they can be remain in this competitive edge. Understood? यही पहला स्लाइड मैंने पढ़ाया था, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट है अब? नो सर। फिर भी एक बार तुम कोशिश करना, पढ़ लेना, एक बार सुन लेना। इट्स वेरी इजियर टू लिसन। ध्यान से, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट किया हूं। अगर फिर भी लगता है कि कोई पॉइंट्स छूट गया है, डाउट है, नेक्स्ट क्लास में उसे पूछ लेना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनिट 4 पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे बता देता हूं। प्रोडक्शंस एंड ऑपरेशन। कितना स्लाइड है ये? हाउ मेनी स्लाइड्स? हाँ, एक दिन में इस कोशिश करूं। 30 और 31, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंटिन्यू, मस्ट कंप्लीट इट इन विद इन अ सिंगल डे। मैं करूंगा कोशिश, थोड़ा सा फास्ट जाना है। सिलेबस बहुत भास्ट है, सिलेबस बहुत भास्ट है। अगर ये मतलब थोड़ा सा स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा ना, एक्सीलेटर में पैर नहीं दूंगा, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि एज आई एम लिसनिंग फ्रॉम द मैम दैट योर एग्जामिनेशन इज नॉकिंग एट द डोर। आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आने स्टार्ट होने वाला है। तो ये टाइम में अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा है मैम? और लास्ट यूनिट है ना इसके बाद? बस मुझे लगता है और 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन? जरूरत जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मैम। एक क्लास में हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये लोग को समझ में भी आ जाएगा, एक क्लास में हो जाएगा मैम। अभी ना थोड़ा सा कॉलेज में ना वर्क लोड है, थोड़ा सा बढ़ गया है मैम। ठीक है मैम, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ना, अदरवाइज मैं डिनाई नहीं करता। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा। हो जाएगा मैम, अपनी टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। ठीक है मैम। ओके।